First tell me what is natural number? The number starting from 1 to infinity. Yeah, in general sense, we generally tell that the counting numbers 1 to 3, 1 to 3 to infinity. Get it? Now let's see the whole number. What is whole number? The number starting from 0 to infinity. ओके दैट मीन्स होल नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर कंसीडर करेगा प्लस जीरो, जीरो उसमें इंक्लूड होगा. अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे. इंटीजर्स कौन बताएगा? व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स प्लस 1 to 3 and negative that is minus 1 to 3 including 0, because this integers include this whole number. Whole number includes 0 as well as all that counting numbers. Then now tell the what is rational numbers. Rational numbers are the numbers which can be written in the form p by q, where q is not equal to 0. Yeah, that's the exact definition of rational numbers. P and Q and integers. Yeah, good. Then now tell me these irrational numbers. The numbers which can't be written in the form p by q. Yes, good. Okay, these are all about the number. Now let's talk about the prime numbers. What is prime numbers? The numbers which have only two factors. Self and? One and itself. That is the number itself and one. Yeah, good. That's the exact definition of prime number. Good. Now tell me what is the odd numbers? जो दो से ना कटे. Not divisible by 2. Okay, good. What is even numbers? The numbers which are divisible by 2. Okay. These all about some basics of numbers. Now let's go on to the set theory. Before going to set theory, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि set theory में आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा आइडिया है? No sir, yet to start in coaching. Okay, चलो ठीक है. Yes sir. चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ. सेट थ्योरी में डिटेल में जाने से पहले ये जो सिंबल्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. पूरा सेट थ्योरी पढ़ लिए होते हैं बच्चों ने, तब भी वहां यहाँ पे नोटेशन पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए नोटेशंस को हमेशा माइंड में रखना है और इसको समझना है पूरी तरीके से कि इसका मीनिंग क्या है. और एक चीज और इसमें हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम किसी ने सुन रखा? Yes, sir. Yes sir, me. वेन डायग्राम जो सर्कल टाइप का दिखता है ना, उसको वेन Yes sir. डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो चलो आगे मैं सेट एलिमेंट और यूनिवर्सल सेट ऐसा बताऊंगा. ठीक है, ओके. तो तुम लोगों ने कुछ और सुन रखा, तो कोई बताएगा इस सिंबल का मतलब मीनिंग क्या है? दिस वन. Sir, it basically represents a set. Good. And this one? Integer. Belongs to. Yeah, this one belongs to. Belongs to. And this one? Does not belong to. Okay, good. And this one? Subset. Yeah, good. And this one? Set. No, not set. Proper subset. Yeah, this one is a proper subset. And this one? Not a subset. Good. And this one? Phi means a null set. Yeah, that's the null set. That means there is no element inside the set. And this one, this is a symbol for? Sir. कोई बताएगा ये किस चीज का सिंबल है? This one. Okay, universal set. Yeah. One more thing. Omega. Yeah, omega. That is in short form, universal set written as omega. Now tell me this one. What is the symbol of this one? Intersection. Yeah, good. And now what is the symbol of meaning of this one? Universe. Universe. Union. Union. Sorry. Okay. Union. So now let's go into the basic definitions, properties, representation, and method to write set. So let's go on the next slide.
as we have studied about the numbers, but one more thing, we should also know about the notations like natural numbers notation as n, whole number as w, बिकॉज ये जो जितने भी नोटेशन है आपको सेट थ्योरी के अंदर डायरेक्ट एन लिखे होंगे, डब्ल्यू लिखे होंगे, जेड लिखे होंगे, जो कन्वेंशनल है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन कन्वेंशनल है, जो लोग मैथमेटिशियन लिख दिया कि हाँ इसको एन को कैपिटल एन को नेचुरल नंबर कंसीडर करना है, डब्ल्यू जो उसको होल नंबर कंसीडर करना है, जेड को जेड प्लस और जेड माइनस को पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करना है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो कि सेट थ्योरी में IIT JEE के एग्जाम में डायरेक्टली इस नोटेशन को यूज कर लिया जाता है, तो ये थोड़ा माइंड में रखना है, कोई टफ नहीं है, सिंपल है। एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से होल नंबर, जेड से इंटीजर कंसीडर करना, उसको प्लस लगाएं तो पॉजिटिव, नेगेटिव से फिर आगे है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नीचे। सेम है उसके एग्जांपल, आप लोगों को अब आइडिया लग गया होगा अच्छे से, जिनको नहीं पता होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट मीन्स जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी तो जॉब लगी, आप सेट हो गए, तो वैसा ही कुछ है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। जैसा कि 3 इडियट किस किसने देखा है, ऑल इज वेल, तो उस तरह से हम हाँ, तो उस तरह से हम अगर डिफाइन करें, उस तरह से हम अगर सेट को डिफाइन करें तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दे कैन बी नंबर्स, लेटर और वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, मतलब सेम नंबर्स नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स, दे कैन बी नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल में ये देख सकते हैं, ये नंबर है और ये वर्ड्स है, मतलब हम सेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो एक दूसरे से डिफर हो। और यहाँ जो सेट्स है, सेट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और ये जो नोटेशन है सेट का, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये रिप्रेजेंटेशन है सेट का, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हम बोलते हैं ना इसे, यस सर। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट या थिंग, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, इस स्लाइड में हमने क्या देखा, सेट का डिफिनेशन क्या है। तो सेट का डिफिनेशन है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी नंबर और लेटर्स, एंड सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से ABC, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर उसके एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। एलिमेंट जो है, अगर वोवेल कॉन्सोनेंट है तो उसको स्मॉल लेटर से, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, अगर नंबर है तो उसके लिए तो बड़ा छोटा होता नहीं, तो जो अल्फाबेट से उसको अगर लिखना है एलिमेंट में तो वो स्मॉल रहेंगे, अगर सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल से लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है लोगों को? Yes, sir. चलो अब आते हैं हम Yes, sir, clear. एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल तो जनरली हमने समझ ही लिया कि जो कोई लाइब्रेरी है उसमें जितने भी बुक्स हैं, मान लो तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो क्या है, तुम्हारा जो सब्जेक्ट, जो लाइब्रेरी में जो 5 बुक पढ़े हो, क्या 5 बुक क्या है, तुम्हारे एलिमेंट है, और लाइब्रेरी क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी इज इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और सॉरी ये स्मॉल में रहेंगे सारे, मैथ और क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो इस तरह से हम लोग, ये क्या हो गया, जो कि हो गया सेट, और ये सारे इसके एलिमेंट हो गए। हर एक एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, ठीक है, और ये सारे स्मॉल लेटर में होंगे। चलो अब नेक्स्ट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ सेट। कोई कॉलेज है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से अलग होता है, तो डिस्टिंक्ट मतलब हमारा, हमें देखना ये है कि हमारा जो डिफिनेशन उसको ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो कोई बताएगा डिफिनेशन क्या था सेट का? The collection of well-defined and distinct objects. गुड, तो वो एग्जाम्पल जो है उसी डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब उसी तरह से जो काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर जितना भी कलेक्शन है उसका काउंटिंग वो सेट हो गया, जो अंदर नंबर्स पड़े हैं 1 2 3, वो सब क्या है, एलिमेंट है उस सेट के।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे सेट ए बोला जा रहा है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 जो है, तो सेट को हम ए रिप्रेजेंटेशन है कि सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से अगर सेट बी है जिसमें रेड येलो और ब्लू ब्लू है, और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि बी इज द सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। तो ये क्या, यह स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम चांस होता है कि इस फॉर्म में आता है। इस फॉर्म को हम देखेंगे कि आगे हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इसका मीनिंग है एक्स, इसका मीनिंग कोई बताएगा क्या है? यहाँ पे लिखा भी है, देखो, मीन्स होता है सच दैट। सर इसे हम कोलन के इसमें भी यूज करते हैं ना, मतलब सच दैट को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. सर। चलो अब हम लोग आते हैं एलिमेंट पे, एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो ये वाला सिंबल जो था, ये हमने बताया था क्या है, बिलोंग्स टू, Belongs जो है नॉट बिलोंग्स टू। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज सेट ऑफ मेंबर, एलिमेंट जो है सेट ऑफ मेंबर है। तो एप्सिलॉन जो है इसका मीन्स है बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन पे एक बार क्रॉस कर देते हैं, उसका मीनिंग हो गया नॉट बिलोंग्स टू। अब ये बस एग्जांपल है। यहाँ पे अगर बोला जाए कि ये हमारा ये सेट है और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट पड़े हैं, अगर बोला जाए 7 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो ये ट्रू है और फॉल्स है? कोई बताएगा? true है। ट्रू सर। ट्रू है, गुड। अब बोला जाए कि जो 10 है जो बिलोंग्स कर रहा है ए से, ये ट्रू है और फॉल्स है? False है। ट्रू सर। True कौन बोल सर रहा वो है? सिंबल डज नॉट बिलोंग का ट्रू है। 10 इसके अंदर है नहीं ना? डज नॉट Yes. बिलोंग्स टू ए। हाँ, तो ये ट्रू हो गया, गुड। IIT जेईई चाहे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं ना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा देखना है, मतलब प्रॉपर मीनिंग उसको देखना है, तब समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। अब हम आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो डाउट सर। चलो हम आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पे। तो सेट का था कि इन्हें सर वो ट्रू है, false था। कौन सा वो पीछे? Yes, sir. एक बार सोचो, तुम सोच के तुम बताना क्या ट्रू है और फॉल्स है। यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे False नहीं, है sir. फॉल्स। False. और ये सिंबल का मीनिंग क्या है, देखना यहाँ ये सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है? Yes, sir. Yes, sir. True है। ओके, गॉट इट। Yes, sir. Got it. चलो ठीक है। अब हमने बताया था कि हमारा सेट का डिफिनेशन था, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है, यहाँ एबीसी वेल डिफाइंड है, और इसमें सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर हम एबीसी लिखें या एसीबी लिखें या बीएससी लिखें, कुछ भी लिखें, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसके। अब बच्चे कभी कभी क्या होता है, पूरा सिलेबस पढ़ जाते होते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया ऐसा उल्टा करके, कुछ ऑप्शन बहुत दे दिया तो गलत कर जाते हैं। इसलिए ये सब माइंड में रखनी है कि सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी को आगे या पीछे लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज है कि यहाँ जो सेट थ्योरी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, मतलब उसको बार बार नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ए और ए, इसको एक ही ए कंसीडर करना है, जितने भी ए है सबको मिला के एक ही ए कंसीडर करना है। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उसको कोई मिसिसिपी का एग्जाम्पल कभी देखा होगा, तो वहाँ पे जितने भी एस है उसको सिंगल एस कंसीडर करते हैं, जितने भी आई है उसको सिंगल आई कंसीडर करते हैं। फिर उसका जब सेट लिखते हैं तो उसमें एम, आई और एस और पी, ये 3 और 4 कंसीडर करते हैं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नोटेशंस, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी का यूज जो है हमारा क्या है, आगे सीक्वेंस सीरीज, जो प्रोग्रेशन भी बोलते हैं आप लोग, सीक्वेंस सीरीज में यूज है। आगे जो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं,
फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस जितने भी फंक्शंस हैं उसमें भी नोटेशन शॉर्ट फॉर्म में यूज होते हैं। तो यहाँ जो सेट थ्योरी का नोटेशन 3 टाइप से इस नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला डिस्क्रिप्शन मेथड, अगर आई है, अगर इसको हम आई को सेट ऑफ इंटीजर्स मानते हैं तो इसको एज ए स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। Yes, sir. वो set builder and एक और हाँ, टाइप होता है, गुड वही गुड ना गुड। सर? हाँ, वही गुड, बहुत सही आशुतोष। तो पहला डिस्क्रिप्टिव नोटेशन मतलब उस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरा जो रोस्टर नोटेशन, कैरिमिनाटी और रोस्टर नहीं है, या रोस्टर नोटेशन है, जो कि सारा जो जितने भी एलिमेंट पॉसिबल है उसको अंदर लिख देते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है लिखना, मान लो इनफाइनाइट है, अगर बोल दिया जाए 1 से ऑल नेचुरल नंबर लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल नहीं लिखना। उस वाले को बोलते हैं रोस्टर नोटेशन कि जितने एलिमेंट है उसको लिख दिया जाए। अब तीसरा जो होता है सेट बिल्डर नोटेशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अगर यहाँ पे ऋतिक लग गया ना? Roaster is short form. नहीं, रोस्टर शॉर्ट फॉर्म नहीं है। रोस्टर है कि जितने भी बोला जाए ना, अगर बोला कि सेट आई जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है तो -3 -2 वो सारे स्टेटमेंट अंदर लिख देने हैं, उसको बोलते हैं रोस्टर नोटेशन। और सेट बिल्डर नोटेशन उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से। सेट बिल्डर नोटेशन, यहाँ एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल का नाम किसी ने सुना है? बताया वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? Variable, they are, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं हो। yes, sir. जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। हाँ, गुड अंजनी। वेरिएबल्स मीन्स जिसके वैल्यू अगर एक्स, अगर कहीं मान लो ये हमारा एलिमेंट सेट ए का ये सारे एलिमेंट है, अगर हमें डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स जो है इस सेट ए का एलिमेंट है, तो एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर एक्स के जगह पे 3 हो सकता है, तो इसलिए एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। सेट ए में जो एक्स है वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो आई इंटीजर लिखा जा रहा है इतने सारे, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, दैट मीन्स नोटेशन के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू एक्स। और इसका रिप्रेजेंटेशन का नेमिंग क्या था, कोई बताएगा? जो वर्टिकल लाइन है उसका मीनिंग क्या है? सच दैट। या गुड, दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इसके पहले एक्स लिखा है, दैट मीन्स एक्स जो है हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, भी हो सकती है। अब बाद में डिफाइन होगा कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन हमें शुरुआत में एक्स एज ए वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ एक्स जो है इंटीजर है, जो हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नोटेशन था उससे अगर हम डिफाइन करें, और ये जो रोस्टर नोटेशन था उसके कंपैरिजन में सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसी तरह से ए है 1 to लेके 1 to 19, और ये सिर्फ क्या है? ऑड नंबर से। तो ऊपर डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में ये क्या स्टेटमेंट फॉर्म में था, अब इस वाले को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ले आए हैं। अब इन्होंने यहाँ पे, हम इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, x लेस देन 20 और कॉमा देके कि x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड होल नंबर। Yes, sir. हाँ, तो इसको मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, स्टेटमेंट का कम यूज करते हैं वो। हाँ, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू 6 एंड x इज अ काउंटिंग नंबर। तो यहाँ तो खैर आंसर दिख रहा है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो सेट ए है उसके अंदर जो वेरिएबल x है और उसमें जो x के सारे एलिमेंट है वो लेस देन 6 है, और लेस देन 6 के साथ क्या हो रहा है कि x एंड जो है ना, एंड का मीनिंग है मतलब सारी चीज ये भी चीज स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो x इज लेस देन 6 और बोला काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 तो नहीं होगा। हेलो, Yes, यस sir. सर। चलो अब दूसरा स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू x इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1। न्यूमरेटर मींस जो अपर जो रेशियो होता है उसका जो अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। जो नीचे में होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं।
तो ठीक है, ये फ्रैक्शन है, होज न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 1 हो जाए एंड होज डिनोमिनेटर इज काउंटिंग नंबर, तो इसको अगर लिखा जाए तो कैसा हो सकता है, कोई बताएगा? मान लो कि अगर हम सेट ए डिफाइन कर रहे हैं और इसमें जो एलिमेंट होंगे इस स्टेटमेंट के अनुसार, कोई बताएगा इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या होंगे? सेट बिल्डर फॉर्म 1 upon n, where n belongs to natural numbers. या गुड, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 1/2 1 1/2 1/3 लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ तक Yes. ठीक है? चलो हम लोग अब आगे चलते हैं। Yes. अब है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर नोटेशन, दैट मीन्स वो जो फॉर्म में, नोटेशन फॉर्म में, तो नोटेशन फॉर्म में अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये हमारा जो सेट है और जो उसमें वेरिएबल एक्स है और एक्स जो बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एक्स को बिलोंग्स कर रहा है, तो पी एक्स क्या है? पी एस के अंदर जो पी एक्स है वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करें कि यहाँ एक ये कोई बताएगी किस फॉर्म में लिखा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, और एक और जो था Set builder form. Set हाँ। builder form. गुड। तो इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, A E I O U. ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इसमें कोई अगर ऑप्शन में ये कैपिटल में दिखा दे, कैपिटल ए यू आई ओ, तो वो गलत हो जाएगा, तो हमें स्मॉल में दिखाना होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं। चलो अब हम ई पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इसमें करा कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर, इसको अगर हम लिखना चाहें ओपन करके तो क्या लिखेंगे? इवन, दैट मीन्स 2 4 6 8. 2 4 6 8, और इनफाइनाइट तक जा सकता है। Yes, sir. जहाँ पे इनफाइनाइट हो ना वहाँ पे कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। जहाँ पे मान लो सिर्फ 2 एलिमेंट दिखा रहा है, एक IITG में क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पे ऑप्शन में 2 और 4 दे दिया, उसके बाद 3 डॉट दे दिया, और एक दूसरा आंसर है उसमें 2 4 6 दिया है, उसके बाद डॉट 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 3 डॉट दे दिया है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमें टिक मारना है? Sir, can you इसमें please 3 repeat डॉट हैं. once? जो हमारा सेकंड ऑप्शन एग्जांपल है ई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 4 ट्रिपल डॉट और 2 4 6 ट्रिपल डॉट, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि कौन सा जो है बेस्ट वन है रिप्रेजेंटेशन का? Second one. फर्स्ट फर्स्ट नहीं, सेकंड वन। हमेशा एटलीस्ट 3 होने चाहिए एलिमेंट अगर इनफाइनाइट हमें दिखाना है तो। गॉट इट? Yes. समझ आ गया सबको? तो कोई बताएगा जो सेट ए है? आशुतोष ने कुछ लिखा? कुछ नहीं. चलो ठीक है, आशुतोष तुम पूछ लेना बाद में कोई डाउट है तो, ठीक है। अब चलो हम सेट ए पे आते हैं। सेट ए बोल रहा है कि एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है, एक्स लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, इसको क्या लिखेंगे बताओ? ये बहुत सही क्वेश्चन है, अब तुम लोगों ने जो पढ़ा वो समझ आ रहा है। SCHOL. गुड, क्योंकि हमने बताया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट थ्योरी में, तो ये दोनों को सिंगल कंसीडर करना है। तो ए इज इक्वल टू, अब एक चीज और, कैपिटल लिखना है स्मॉल लिखना है? स्मॉल Small. लिखना है. स्मॉल लिखना है, गुड। अब यहाँ पे नेक्स्ट बी पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू वेयर एक्स जो एक्स का रेंज जो है 4 to 7 के बीच में है, और एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तो 4 to 7 एंड इक्वालिटी का भी साइन है, दैट मीन्स 4 और 7 इंक्लूड होगा, और बोला नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स जो काउंटिंग नंबर इंक्लूड है उसमें, तो 4 5 6 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. चलो अब नो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सेट सी जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इज ए फैक्टर ऑफ 40 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो वेरिएबल x है, मतलब सेट सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो फैक्टर है किसके? 40 के, और जो x है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग के नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है।
यहाँ तुम्हें Yes, आंसर दिख रहे हैं, लेकिन तुम आंसर को मत देखो, इसको देखो मत, और यहाँ बस सोचो इस वाले पे स्टेटमेंट पे सोच के, और अपने जो नोटबुक अगर तुमने रखा है तो वहां पे बताओ कि सी की वैल्यू क्या क्या होगी। ये बोला एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 40, ठीक है। एक्स मतलब क्या, जो एलिमेंट्स है सेट सी के, जो एलिमेंट है और जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो 40 को हम नेचुरल नंबर 1 40/1 लिख सकते हैं। 40/2 वो भी डिविजिबल है, तो 2 हो गया। 3 से 40 जो है 3 से नहीं होगा डिविजिबल, 4 से होगा, 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 से 8 बार में डिविजिबल हो जाएगा, और 8 से 5 बार में हो जाएगा। उसके बाद 10 से 4 बार में, 20 से 2 बार में, और 40 से 1 बार में। समझ आ गया सबको? Yes, sir. चलो, तो अब हम लोग आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है सेट डी। अब सेट डी को यहाँ पे आंसर कोई मत देखना, बस जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पे बस देखना और ये सोच के बताओ कि क्या होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो एक्स जो है, जो फॉर्म में है n/n+1, और n जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। देखो बस शॉर्ट नोटेशन में दिया, या स्टेटमेंट नहीं लिखा है नेचुरल नंबर, तो इसलिए नोटेशंस को थोड़ा माइंड में रखना है। और यहाँ जो स्मॉल n बिलोंग्स कर रहा है 1 to 6 इंक्लूडिंग 1 and 6, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग नोटबुक रखते हो अपने पास, मतलब अभी पढ़ते समय? यस सर। Yes. चलो, तो खैर नेक्स्ट अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि आंसर नहीं डाला करो। अभी तो दिख ही नहीं तुम लोगों को। चलो, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 to 6 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या क्या हो जाएगा? n/n+1, तो n की वैल्यू 1 to 6, 1 इंक्लूड है। Sir, voice नहीं आ रही. वॉइस आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? हेलो, आ रही है सर, क्लियर आ सर। रही है सर। सेट थ्योरी में जो सेट बिल्डर फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे, क्योंकि बच्चे पूरा सेट थ्योरी पढ़ जाते, कोई बड़ी बात नहीं है, सेट थ्योरी हर एक को समझ आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे बच्चे फंसते, मैं वहां पे उस पर फोकस करना चाहूंगी। जो सेट का नोटेशन है ना, ये अच्छे से समझ आना चाहिए सबको। अब 1/n की जगह 1+1, फिर 1/2+1, इस तरह से 1/3+1, अप टू कहाँ तक लिखना है? अब 5+1. 5+1। तो ये सारे एलिमेंट जो है हमारे हमारे जो है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कोई IIT JEE की बुक अगर तुम लोगों ने खरीद रखी होगी, तो उसमें कोशिश करना कि जो जो अभी बन सके आज के क्लास के बाद, उसको ट्राई करना। Okay, sir. चलो ठीक है, अब हम आते हैं कि हम मानते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसमें जो x है उसका एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग्स कर रहा है a से, और अगर नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो x नॉट बिलोंग्स टू a, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिसको हम एक एग्जांपल से, वो जो x नॉट बिलोंग्स टू 10 था, जो सेट दिया था, वो याद होगा। अब हम आते हैं एक एग्जांपल पे। अब यहाँ पे कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 3, 17, 2, देन 3 बिलोंग्स टू a, ये ट्रू है। 17 बिलोंग्स टू a, ये भी ट्रू है। 2 बिलोंग्स टू a, भी ट्रू है। और बोला कि 5 नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये भी True है. ट्रू है। गुड। अब बोला कि इफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमने देखा था पहली स्लाइड में, प्राइम नंबर क्या होता है? Number who divided by itself or 1. Yeah, that's the good answer. Number divided by itself and 1. तो अब यहाँ पे जो होंगे, क्या क्या होंगे? नंबर बता सकती हो? 1, 2, 2, 3, 5, 7, 11 and सर 1 नहीं आएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा? अभी किसने Yes. डॉन? no sir नहीं नहीं आएगा. सर। चलो, नहीं सर नहीं आएगा. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बस लिखा है इस फॉर्म में लिखा है। अब तो ये अगर प्राइम नंबर नहीं मालूम हो तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए हर एक जो बेसिक्स, नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है वो मालूम होना चाहिए। उसी के बेस पे ऑप्शन दिए रहेंगे A और B, इस तरह से कि 5 बिलोंग्स टू A, तो ठीक है, 5 है बिलोंग्स टू A, तो इट्स ओके, 2 है।
अब पूछा 6 बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये भी ट्रू है क्योंकि इसमें 6 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 6 जो है डिविजिबल है 2 और 3 से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ए। सेट ए में एक स्टेटमेंट है कि इंटीजर्स x, जिसमें x बिलोंग कर रहा है 1 to 6। कोई कुछ बोल रहा है? सर हाँ हाँ, यस सर x इज अ प्राइम नंबर में सर इन्फिनिटी को सर करेंगे सर कंसीडर। हाँ हाँ, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, करेंगे। बाकी बच्चे लेकिन बताओ, सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी लेकिन कंसीडर सर करेंगे। इन्फिनिटी Yes, sir. आशुतोष पूछ रहा था करेंगे कि नहीं करेंगे। सर संतोष अच्छा संतोष, देखो करेंगे। संतोष, अगर हम बस बोले कि ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं बताओ। 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9 और इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट तो नहीं है ना। Yes, sir. तो हम 11 भी No. आगे लिख सकते हैं, तो इनफाइनाइट नो सर 11 नहीं लिख सकते। लिख तो सकते हैं। लिख सकते हैं सर। हम मतलब इनफाइनाइट फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक प्राइम नंबर को भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट फॉर्म में, नेचुरल नंबर को भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर को भी लिख Yes, सकते हैं, sir. इवन नंबर को भी लिख सकते हैं। गॉट इट? सर हाँ हाँ बोलो। Yes, sir. जब तक लिमिटेशन नहीं है लिख सकते हैं। हाँ ये सही है, जब तक Sir. लिमिटेशन नहीं है तब तक हम उसको इनफाइनाइट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जब तक कंडीशन ना दिया हो। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। टाइप्स ऑफ सेट भी इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस्ड पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट वन जो है इनफाइनाइट सेट, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि इनफाइनाइट सेट क्या होंगे। तो इनफाइनाइट सेट मीन्स क्या, अगर कोई हमारा सेट ए है उसमें जो एलिमेंट पड़े हैं, मान लो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक एलिमेंट है, तो उस वाले सेट ए को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. अब आते हैं हम लोग फाइनाइट सेट पे। तो फाइनाइट सेट मीन्स मतलब अगर जिस सेट में हम उसके एलिमेंट्स को elements. काउंट कर पाए। Yes, sir. चलो ठीक है, तो हमने देखा इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जिसमें फिक्स्ड एलिमेंट होंगे सेट के अंदर। अब आते हैं हम इनफाइनाइट सेट का अगर एग्जांपल देखें, तो अगर सिर्फ बोला जाए कि नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, तो ही तो इनफाइनाइट तक जाएगा। Infinite set. इसका मतलब इनफाइनाइट सेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट सेट के ये सब कुछ एग्जांपल हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन इनफाइनाइट सेट का जो एन है नेचुरल नंबर, वो भी इनफाइनाइट होता है। अगर सिर्फ हम बिना कंडीशन के सिर्फ बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट है वो। उसी तरह से अगर हम इंटीजर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स वो इनफाइनाइट सेट है। अगर रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो वो भी इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर बोल रहे हैं वो भी इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी, जितने भी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इनफाइनाइट सेट है, जब तक कि उसमें कंडीशन ना लगाया जाए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट तो फिक्स है, जिसमें मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, फाइनाइट सेट में जाने से पहले एक चीज मैं पूछता हूँ। अगर ए इज इक्वल टू है मान लो 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन इज इक्वल टू, यहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर? 3. 3 है, गुड। अब मान लो कि हम एक कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, एलिमेंट बी इज इक्वल टू ए और बी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट बी के अंदर? 2. 2 Sir, 2. गुड। अब ये जो जितने नंबर होते हैं ना, जितने, उसको बोलते हैं कार्डियनलिटी। जितने नंबर पॉसिबल है ना उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो कोई सेट दे देगा कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, और पूछेगा कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, या फिर पूछेगा ऑर्डर ऑफ सेट क्या है, और फिर पूछेगा इसकी फाइनाइटनेस क्या है। सारे टर्म सेम है, बस हमें देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब ये वाला सेट है, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं?
2 2 जिसने बोला वो सही है, क्योंकि 2 सर। हाँ ठीक है। एक मैंने चीज शुरुआत में बताई थी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है तो बीच में कॉमा के बाद उसको काउंट करना है, कर्ली ब्रैकेट उसके बाद कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा बीच में कितने हैं, एक ही कॉमा है, मतलब 2 एलिमेंट होंगे। तो इस वाले के एलिमेंट कितने हैं, कार्डियल नंबर इसमें कितने पॉसिबल है, 2। यहाँ इस स्लाइड में किसी को दिक्कत है, किसी को नहीं समझ आया है यहाँ पे, एनीबॉडी? चलो तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, सबको समझ आ गया तो। जिसको नहीं समझ आया वो इस स्लाइड में समझ सकते हो। अब अगर यहाँ पे अगर कहा जाए कि एस इज अ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब एस कोई सेट है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है, देन इसकी कार्डियलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम लोग एस लिख सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड की तरह सिंबल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एन ऑफ एस लिख सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है कि कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी को हम इस तरह से या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इफ जो सेट एस है इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे एस इजिकल टू 3 3 3 3, तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कोई बताएगा? 1 होगा, क्योंकि हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में हमने देखा था, हाँ, रिपीटेबिलिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती। अगर सेम नंबर को, सेम एलिमेंट को हम कितनी बार लिख दे, उसको काउंट कितनी बार करेंगे, सिंगल बार, तो इसलिए इसकी कार्डिनलिटी 1 है, ठीक है। और इसके बारे में एक ये है, एस इजिकल टू ए सारे टर्म, तो मैंने क्या बताया, कॉमा देखना होता है हमें, कॉमा कितने कॉमा है, 1 2 और ए 2 ही है, तो मतलब कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 एंड 3, तो इस वाले सेट एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3। यहाँ तक सही है सबको? यस सर। अब आते हैं हम लोग सिंगलटन सेट, इसका नाम से जैसा डिफाइंड है, सिंगल सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब मान लो कि यहाँ पे अगर कोई सेट डिफाइन है ए इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, दैट मींस ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट है। इसको बेस्ट याद करने का तरीका क्या है कि द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अभी के समय में जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कितने हैं, 1 है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर को क्या बोल सकते हो, एक सिंगलटन फॉर्म ऑफ सेट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो एक चीज आप ये बताओ, सेट बी के बारे में बताओ कि कौन सा सेट है। अगर बोला जाए कि सिंगलटन सेट है तो ट्रू बात है और फॉल्स है, डी जो है सिंगलटन सेट है, ये स्टेटमेंट है, तो अगर ये बोला जाए कि जो स्टेटमेंट है ट्रू है और फॉल्स है, तो इसमें कौन सा होगा, ट्रू। तो हम लोग इसको चेक करते हैं ट्रू कैसे है। अब बोला है कि यहाँ पे बोला है कि x बिलोंग्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, -4, तो दैट मीन्स जो सेट डी है हमारा उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, -4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1, तो हमारा डी क्या है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। अब एफ आते हैं, एफ क्या है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक्स इज क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ। अब क्लोजेस्ट प्लेनेट जो अर्थ से कितने हैं, तो क्लोजेस्ट मतलब सबसे क्लोज एक ही होगा ना, यस सर। मरकरी है सर। हाँ, तो एक ही है, Yes. तो दैट मीन्स अगर बस ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बस में ये स्टेटमेंट दिया होगा, एक्स इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, तो आप पूछे कि ये सिंगलटन सेट है और फिर इनफाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट है,
तो क्या बोल रहा है कि ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि जो क्लोजेस्ट प्लेनेट अर्थ के है वो सिंगल है, इसलिए सिंगलटन सेट है। चाहे उसी को बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सिंगलटन सेट इज 1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है एम्प्टी और नल सेट। इसके बारे में कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, सुना है किसी ने? एम्प्टी और नल सेट, इसी को हम लोग और क्या Yes, sir. इसी को हम लोग और बोलते हैं वाइड सेट। दैट मीन्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तभी जो नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। और दूसरा सिंबल ए है रिप्रेजेंटेशन फाई, जिसको पहले स्लाइड में किसी ने बताया था कि ये है एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंबल है इसके कर्ली ब्रैकेट और फाई, जो कि एम्प्टी सेट और नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक किसी को मालूम है? इंटरसेक्शन मीन्स Yes, sir. जो यस सर। तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? कॉमन चीज जो कॉमन हो। मान लो ए सेट में 3 5 7 9, 3 5 7 9 सेट ए के अंदर है, और सेट बी के अंदर 2 4 6 8। अब इस सेट और इस सेट में कुछ कॉमन है? नहीं सर। नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी कोई चीज कॉमन है, null. तो नल है। तो नल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिख सकते हैं या फिर फाई लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। अब Yes, sir. अब यहाँ पे देखते हैं एम्प्टी सेट में। अब सेम ही उसी टाइप की ये भी, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी नल। नल हो जाएगा। अब नल को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, Empty और null set. हाँ एम्प्टी और नल सेट। तो एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, एक इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो है कि x बिलोंग्स टू x एंड x जो है नेचुरल नंबर, जिसमें 0 से x बिलोंग कर रहा है 1। तो यहाँ पे जो सी सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कोई बताएगा? Zero, sir. गुड, 0 है। दैट मीन्स ये नल सेट है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बोला एन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? बिलोंग्स करता है ना 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर। तो अब बोला 0 से 1 के बीच में कोई नंबर पॉसिबल है? वैसा नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए इसके अंदर कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं। दैट मीन्स ये क्या है? हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट है। तो वही इसका ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा जाए तो सेम मीनिंग हुआ। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाए कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कोई हम मुझे बताएगा कि यहाँ पे एक सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? अब यहाँ पे बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 के रूट अंडर। तो ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। दैट मीन्स x जो है रियल नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स एक ये नल सेट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब सेट बी है। सेट बी में बोल रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तक, और x जो है नेचुरल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? No, sir. नो। No, sir. दैट मीन्स बी क्या हो ना। गया? नल सेट हो गया। यस सर। अब सी स्टेटमेंट है कि x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब बोला x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ये क्या होगा? कोई बताएगा? स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना समझना। No, नहीं होगा sir. सर ये भी। Sir, नहीं होगा. सर बड़ा नहीं होगा सर, ग्रेट। चलो एक्सप्लेन करो, Two ही बताओ सिर्फ आवाज नहीं आ रही तुम टू लोग। ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. हाँ चलो सर गुड। 2 से सर बड़ा एक भी नहीं है सर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? नल सेट का एग्जाम्पल हो गया।
अब एक स्टेटमेंट इस तरह का है कि एक्स जो है, एक्स इज ए मैरिड बैचलर, तो पॉसिबल है ऐसा? मैरिड बैचलर मीन्स सर? बैचलर मीन्स होता है जिसकी शादी नहीं हो रखी है, मैरिड मतलब जिसकी शादी हो रखी, तो बोला जाए कि एक एक शादीशुदा लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रखी, तो ये पॉसिबल है? नहीं सर, नो सर। हाँ, तो ये भी क्या नल सेट का, सेट डी भी जो है नल सेट का एग्जांपल है। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर मान लो कि हमारा सेट ए है 3579, सेट बी है 2468, तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें तो इसमें इसके सारे सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। इस वाले यूनिवर्सल सेट में किसी को दिक्कत है? नो सर। अब आते हैं हम लोग इक्वल सेट। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? तो स्टेटमेंट है इसका कि टू सेट्स दैट कंटेन द सेम एलिमेंट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सी है इसमें, तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 है, 1 है तो 1 है, डी है तो डी है। तो टोटल एलिमेंट जो ए है बी के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर मैंने क्या बोला कि सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं वो सेम है, तो इसके लिए इसके दो कंडीशन है। यहाँ पे इक्वल सेट होने के दो कंडीशन है। पहला कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर उतना ही होना चाहिए। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 सेट ए में है और 1 2 3 4 सेट बी में है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स की वैल्यू है सी 0 1 डी, यही सारे एलिमेंट चारों दोनों में ही है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल सेट समझ आ गया सबको? यस सर। अब एक आगे डिफाइन होता है इक्विवेलेंट सेट। यस सर। गुड आशुतोष। तो इक्विवेलेंट सेट में हम बस देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। उसमें हमें एलिमेंट की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। अब जैसे मान लो कि ए है 1 2 3, बी क्या है 4 5 6, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं। लेकिन कोई एलिमेंट मैच कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा ना एलिमेंट्स, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का कंडीशन है कि बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में इक्वल होने चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है। और इस सिंबल का मीनिंग याद रखना, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। दैट मीन्स बिलोंग्स कर, इम्प्लाइज दैट। अब तुम लोगों ने बहुत जगह देखा एक्स बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है बी से बिलोंग कर रहा है। एक्स क्या था? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स एलिमेंट। तो सेट ए के जो एलिमेंट है और जो सेट बी के एलिमेंट है, वो जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट है सेट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी जो सेट ए के एलिमेंट हो इक्वल है सेट बी के एलिमेंट, तो उसको क्या बोले? इक्वल सेट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बोला कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 145 एंड सेट बी इज इक्वल टू 415, देन ए इज इक्वल टू बी होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू यस सर। ट्रू होगा। गुड, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स True. 3। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी 3 है। और जो एलिमेंट्स है इसके 1 4 5, तो 1 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और 5 भी यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट की वैल्यू भी सेम है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि x जो है, x जो है 2 to 6 है। यहाँ पे इस तरह का साइन होगा, ठीक है? x की वैल्यू 2 to 6 है एंड यहाँ पे b जो है 2 3 4 5 6 है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर सेट ए में जो एलिमेंट्स है 1 और 2 है, सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 2 1 है, और जो सी डिफाइन कर रहा है ए, तो देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ट्रू और फॉल्स? ये बता दोगे तो मैं समझूंगा अब तक तुम लोगों ने समझ रखा जो जो मैंने बताया। बता रहा है कोई? फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। सही में? बताओ इसका इसका रूट क्या होगा? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, कोई बताएगा? सर क्योंकि
इसकी वैल्यू बस बता दो इस इक्वेशन की। 1 और 2। 1 और 2। और इस वाले सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 और 2। 2 1 और 2। और ए में यस एलिमेंट सर, तो यस सर, 1 और ट्रू 2 है। है। फॉल्स ट्रू किसने होगा बोला सर। अभी? किसी ने फॉल्स बोला था ना? हाँ सर, हमने बोला। कौन, आशुतोष? सर एक सवाल को सॉल्व नहीं ना किए थे ऐसे ही बोल दिए सर। अच्छा अच्छा, चलो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पास पेन और कॉपी तो रखा ही करो। अब इस वाले जो सेकंड है, लास्ट सेकंड है, इसको बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा। बोला कि एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड LY, ALLOY, एंड बी इज एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रू। लोयल। तो इसमें क्या होगा? आंसर क्या इक्वल है? है सर। इक्वल है ना? यस सर, मैच क्योंकि कर देखो रहा है सर। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए है, एल है, इक्वल। ओ है, वाई है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और ALOY। यहाँ पे भी देखो ALOY सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। चलो इक्वालिटी, कोई बताएगा इक्वालिटी का डिफिनेशन क्या बताया था मैंने, क्या होता है इक्वालिटी? कोई नहीं बता रहा? सर नंबर सर, इसमें मतलब सेम रहता है। मैग्नीट्यूड जिसका सेम हो। हाँ, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, उसके अंदर की वैल्यू जो है सेम नहीं हो। तो यहाँ पे एक यस एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू है स्मॉल a b c एंड कैपिटल B इक्वल टू 1023। तो अगर बोला जाए कि ए जो है इक्विवेलेंट है बी के, तो ट्रू है और फॉल्स है? ये इक्विवेलेंस का साइन है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना, दोनों में ए और बी में यस सर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। अब एक है होम, अभी तुम्हारे लिए, इसको बताओ। चलो ये सेम उसी का एग्जांपल है, तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। अभी बोला डिसजॉइंटनेस। अब डिसजॉइंटनेस क्या होता है? ये जनरली डिफाइंड होता है यहाँ से। मान लो कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को याद रखना कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके सेट होते हैं, जो सेट मान लो कि सेट ए है, उसको सर्कल से उस यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स मतलब उसके अंदर सारी चीज इंक्लूड होंगे, तो जितने भी सेट आएंगे इस बॉक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब सेट बोला कि सेट ए और सेट बी है, अब इसमें बोला डिसजॉइंटनेस मतलब एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे कॉमन नहीं हो। हाँ कॉमन नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर कंसीडर करें तो जो कि नल सेट होगा। ठीक है? यस सर। यस सेम ही चीज है। अब आते हैं हम लोग सबसेट पे। तो सबसेट का नोटेशन ए है। सबसेट का नोटेशन ए है। अब ये वाला नोटेशन मतलब सबसेट है, और उस पर कट कर देंगे तो मतलब ये सबसेट नहीं है उसका। तो सबसेट मतलब क्या? सेट के अंदर जो सेट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सबसेट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। और इस मीनिंग का मतलब हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलत हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो अगर लिखा जाए कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? ए, इसको पढ़ते हैं इस टेबल को, इज अ सबसेट ऑफ, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है? इस पर अगर नॉट लगा दें तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो बी, बी है 357, सी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब ए में देखते हैं 1 2 3 4। ए के अंदर क्या 1 है? नहीं है। सेट ए के अंदर सी का जो एलिमेंट 1 है वो नहीं है। अब बी का जो एलिमेंट है उसको देखते हैं 357। तो 357 बी में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी जो है सबसेट है किसका? सबसेट ऑफ ए। ए है, ठीक है। और सी है क्या सबसेट ऑफ ए? नो सर। नो, गुड, क्योंकि इसमें जो 1 है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और इसका एक मेमोरी के लिए ये सोच सकते हो कि ये जो ग्रेटर का साइन समझ सकते हो कि ए की ओर अगर इस तरह का साइन है, इसका माउथ अगर ए की ओर है मतलब ए बड़ा है, मतलब ए जो है सेट होगा और उसका जो बी होगा सबसेट होगा। इस तरह से समझ सकते हो। यहाँ तक सबसेट समझ आ गई?
Yes, sir. अब हम अगर डाइस कंसीडर करें तो डाइस में पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, कितने पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं? 6. 6 आ सकते हैं। और अगर इसमें पूछा जाए तो ये देखो, ये टोटल 6 हैं। अब इसमें पूछा है कि सेट ऑफ पॉसिबल इवन आउटकम्स, तो इवन आउटकम्स कितने होंगे? 3. 3। अच्छा, ओके, 3। 2, 4, 6. हाँ, गुड, ठीक है, 2 4 6 हो गए। और जितने पॉसिबल आउटकम है उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। मतलब उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक डाइस पे इससे ज्यादा कोई नंबर आएगा नहीं, तो उसके लिए यूनिवर्स क्या है? यही ये सेट, ये जो है यूनिवर्स है। ठीक है यहाँ तक? Yes. और जो ए ई है वो क्या है? इसका सबसेट है ए का। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए वेन डायग्राम के फॉर्म में, जो हमारा बी है वो किसका है? सबसेट ए का। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। ठीक है यहाँ पे? और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है प्रॉपर सबसेट का, ये माइंड में रखना है हमें कि इफ बी सबसेट ऑफ ए, तो ठीक है यहाँ बी जो है सबसेट ऑफ ए है, एंड ए कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर नॉट इन बी, देन बी इज कॉल्ड, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है, मान लो कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, और बी के अंदर है बस 2 और 3, बी के अंदर 1 तो नहीं है ना, तो ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। बी को बोलेंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर बोला है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है इस फॉर्म में? ये नीचे एक इक्वलिटी का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है? और सिर्फ सिंपल बोला जाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर बोला जाए कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसका साइन क्या होगा? बस इस तरह से होगा। तो हमने क्या देखा था कि अगर प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर ये बी है और ए है, तो इसमें अगर एलिमेंट 1 2 3 है और बी में सिर्फ 2 3 है, तो बी को क्या बोलेंगे? बी इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं, सबसेट नहीं, क्या प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में ए के सारे एलिमेंट नहीं है। तो अब तुम बताओ कि सुपर सेट क्या होगा? इसके उल्टा होगा डेफिनेशन सुपर सेट का, बता सकते हो क्या होगा? Yes, sir. डेफिनेशन बताओ। चलो समझ तो आ गई ना प्रॉपर Sir. सबसेट क्या है? Yes, sir. वो समझ गए सर, प्रॉपर सबसेट। हाँ चलो ठीक है। और ये इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है, सिंबल याद रखना कि प्रॉपर सेट में ये इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, और जो सिर्फ सबसेट Yes, बोलेगा sir. उसमें इक्वलिटी का साइन होगा। और सबसेट अगर बोला जाए कि Yes. सबसेट नहीं है, तो उस पर ये कट मार्क रहेगा। कट मार के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अगर बोला जाए कि सेट ए जो है 3 5 7 है, अब बोला जाए कि ये जो है नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी 1 4 5 7 9, तो कहेंगे? बताएगा कोई? बोला जा रहा है कि ये जो है सबसेट नहीं है बी का। जाते हैं, ये मान लो सबसेट ए है, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 बी। अच्छा, ए है यहाँ पे, देखो ए 1 2 3 4 5 6, और सेट बी जो है 4 5 6 है, तो बी के सारे एलिमेंट्स किस में? ए में है, तो दैट मीन्स बी जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। यस सर। एक चीज यहाँ नोट करने वाली पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आगे हर जगह जो कंपटीशन वाले चाहे ऐसे भी जनरल जो क्वेश्चन आजकल 11th में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे बच्चे इस वाले डिफिनेशन में फंसते हैं कि जो इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट हमेशा सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। अगर हम बोले कि ए इज इक्वल टू 1 और 2 है, तो ए के कितने सबसेट पॉसिबल है? कोई बता सकता है? सबसेट ऑफ ए कितने पॉसिबल है? एक 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, और एक 5 लिख सकते 5. हैं। कितने पॉसिबल है? 4। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कितने हैं? 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। तो इस वाले को बोलते हैं पावर सेट। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में देखेंगे पावर सेट क्या सर होता है। क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर प्रॉपर सबसेट में वो
मतलब जैसे सर 4 5 6, तो हाँ। 4 5 6 मतलब बी है सर, प्रॉपर सबसेट है, मतलब मान लीजिए उसमें 1 ए में 1 2 3 नहीं रहता, तो सर वो क्या होता, बी और ए क्या होता सर, प्रॉपर सबसेट होता कि सबसेट होता? उसको हम लोग बोलेंगे सेमी बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, सबसेट भी बोल सकते हैं, लेकिन सर अब प्रॉपर सबसेट नहीं समझे सर। देखो मैं बताता हूँ प्रॉपर सबसेट क्या है। बी में क्या है 4 5 6 है, ठीक है, यस सर। और ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, यहाँ पे गॉट इट। यस सर। अब जो बी में जो 4 5 6 है, लेकिन 1 2 3 इसके अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं है ना, तो बी जो है नो प्रॉपर सर। सबसेट ऑफ ए है। मतलब जो अगर ए यस के सर। कुछ भी एलिमेंट बी में अवेलेबल नहीं है तो बी को क्या बोलेंगे, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, बस ये है, इक्वालिटी का साइन उसमें नहीं होता। यहाँ तक सही है। यस सर, मतलब सर फाई और मतलब इक्वल सेट को छोड़कर जो भी हो उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। हाँ हाँ, समझ गए तुम। ओके चलिए सर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, आगे चले हम। यस सर। चलो ये बस एग्जांपल है। अब यहाँ पे द सेट 1 2 3 4 5 6 इज सबसेट ऑफ द सेट बी। बी जो है बिलोंग्स टू x लेस देन 7 एंड x इज अ काउंटिंग नंबर बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसेट डिफाइन है, टोटल एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। Yes, sir. यस सर। तो इसको सबसेट बोल रहे हैं ना, कि सबसेट ऑफ सबसेट है उसका, ए जो है बी का सबसेट है। तो यहाँ पे दोनों चलता है, यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं कि ए जो है सबसेट बी का, या फिर बी सबसेट है ए का। एक। हाँ, इस तरह से यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर यस दोनों सर। में इक्वल है तो उस दोनों को एक दूसरे का बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ठीक है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये जो बेसिक्स होते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन भी फिर बच्चे मिस कर जाते हैं, इसलिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट यस सर। लिखते हैं। अब पावर सेट पे हम लोग आते हैं। तो पावर सेट का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, समझ आया कुछ पावर सेट क्या बोला था इसके पहले, पिछले साल में मैंने। सर सेटों का सेट पावर सेट। हाँ ठीक है, ऐसा ही है, गुड। अब मान लो कि यहाँ पे सेट ए है, मान लो कि सेट यहाँ पे ए है, ए इज इक्वल टू ए बी सी। तो कितने पॉसिबल इसके सेट, कितने पॉसिबल सेट हो सकते हैं? एक तो नल सेट इंक्लूड, 8। नल सेट हमेशा इंक्लूड रहेगा, ठीक है, एक फॉर्मूला वाला है 2 के पावर n, गुड। अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एक नल सेट इंक्लूड आ जाएगा, एक ए आएगा, एक बी आएगा, एक सी आएगा, एक ए बी, एक बी सी, एक सी और एक ए बी सी। तो टोटल कितने हो गए 8, जो कि फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, 2 के पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यहाँ तो कोई दिक्कत? सर पावर, सर प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा निकालने का? प्रॉपर का तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर का फॉर्मूला नहीं है, पावर सेट का फॉर्मूला है। ओके सर। ठीक है, अब पावर सेट का फॉर्मूला का तुम्हें पता चल गया, 2 के पावर n लगाना होता है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पावर सेट समझ आ गया। यस सर। अब गलत तो नहीं करोगे ना कहीं, अगर मैं पूछूं आगे, तो आगे चल के पूछो तो गलत नहीं होगा। No, sir. चलो तो पूछते हैं। मान लो सेट ए है, इसके अंदर 1 है और इसके अंदर ए है, तो बताओ इसके नंबर ऑफ सबसेट बोलो, और पावर सेट इसके कितने पॉसिबल है। नंबर ऑफ सबसेट और इसके पावर सेट कितने होंगे, बताओ। बता नहीं रहे। नंबर ऑफ सबसेट 4 और नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ सबसेट 4, सबसेट 4 हाँ और नंबर ऑफ सर पावर सेट इज इक्वल टू 16। हाँ, कैसे आएगा बता सकते हो? यस सर। सर हाँ। वो सर ये जो 5 है तो वो 5 हो जाएगा ब्रैकेट में, हाँ 2 का पावर n, 2 का पावर n से निकाल। ठीक है, तो 2 की पावर, अच्छा चलो ये लिख के बताओ, लिख के अगर मैं पूछूं कि सवाल लिख के बताओ तब कितने होंगे।
हाँ सर, 5 एक सेकेंड। हाँ चलो, पता नहीं था ना क्या था, एक 5 था और एक ब्रैकेट में 5 था, तो हमें बताना है कि टोटल पावर सेट कितने होंगे। बोलो 5। सर, एक 5, एक ब्रैकेट वाला कर्ली ब्रैकेट का 5, ठीक है, एक दोनों सर, ठीक है, और एक सर मतलब अलग हट के एम्प्टी। हाँ गुड गुड। कितने हुए? सर वो इसमें पहले वाला सर 5 में होगा एक कर्ली ब्रैकेट, और दूसरे वाला में 2 कर्ली ब्रैकेट। और दूसरे वाले में 2 कर्ली ब्रैकेट, इसमें यस सर, और पहले वाला एक, पहले वाले में। इस वाले में 1, हाँ गुड। तो कितने, 4 हुए ना? यस सर। 4 हो गए। अभी 16 क्यों बोल रहे थे? सर पावर सेट 16 होगा सर। तो पावर सेट का फॉर्मूला है 2 के पावर n। सर 2 का पावर n तो उसका सबसेट का भी सर जो सेट होता है ना सर, उसको बोलते हैं पावर सेट। नहीं मतलब ये वो कितने नंबर पॉसिबल सेट हो गए, लेकिन उसी को एक नेमिंग दिया है कि पावर सेट, मतलब टोटल पॉसिबल जो सेट हो गए ना सबसेट, उसको बोलते हैं पावर सेट।